Pune races 27th of August 2022. The first race will start at 1:30 p.m. So in the first race, Amped is favorite. लास्ट टाइम क्लास 4 में थर्ड भागा था, ओके, लेटो के सामने. आई थिंक लेटो वन good cup, I think so. Okay, then has ran in a better company, and this horse has a good pedigree. Half speaking of which, an Ambrosia, so no doubt कि डिस्टेंस तो आराम से जाएगा ये. ओके, बट द थिंग इज़ कि जो ट्रेनर का रिकॉर्ड है AM जदेव, बहुत ही लो स्ट्राइक रेट का ट्रेनर है. हार्डली पूरे सीज़न में 3 या 4 विन लेता है पुणे में. ओके, सो टुमारो ही इज़ फेवरेट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज हॉर्स इज़ गेटिंग हैंडीकैप एडवांटेज. NS परमार को बिठाया, बट इसके फेवरेट्स बहुत ही कम विन होते हैं. सो आई डाउट, बट अगेन दिस हॉर्स इज़ बेस्ट इन द फील्ड. सो एनीवेज, बहुत ही ट्रिकी रेस कार्ड लग रहा है मुझे. इसके बाजू में कोई आ सकता है तो वो है पावर ऑफ थोर. हैज़ ऑलरेडी वन दिस डिस्टेंस, बट लास्ट टाइम ही वॉज सेकेंड इन अ माइल. बिफोर दैट 1800 मीटर में जीत चुका है. एंड अगेन लाइटनिंग फ्लेम. अगेन दिस हॉर्स हैज़ ट्रेवल्ड 2000 meter also, and this horse is capable to upset the race, lightning flame. Okay, I can't say which horse will win or which horse will lose. I am here to explain the race card only. Okay, so in the first race, Amped is best in rating and is the best horse in this race. Okay, that's why this horse is favorite. Coming to the second race of the day, it's a class 4,000 meter race. Over here, Enlightened last time ran second to Esperanza. Okay, now Trevor is riding this horse from Srinath. Okay, this horse, I think it's a hot favorite. Again, I don't think that this horse will be any other horse will come close to this horse. Okay, Red Carnation can follow him, and Stars for You also, but these are Stars for You is very unlucky horse. Last time was Saddle Slip. Before that it was second to Rhythm of Nature, and before that ran 5 lines behind Exclusive. And this horse ran in 76 behind Ramus at 52.5. And again, Enlightened has also ran behind Ramus at 60, but over here Enlightened is having an handicap advantage, and Ramus is 3.5 kilo more. And again the jockey is Haridas Gore, so he will be going with 51. So this race is definitely between number 1 and number 3, Enlightened, and number 3 Stars for You. Okay, coming to the third race of the day, again over here the Botero is hot favorite. Pacey's horse hot favorite. Last time was second to Exemplify. I think last time also this horse was in the betting line but didn't perform. This horse is very unlucky. Lost to the Babaji, then lost to Kamaria at 30 paisa. That was big upset that day. Okay, very unlucky horse for punters to follow this. And over in this third race, the race should be between number 1 and number 4 Own Legacy. But the thing is, Own Legacy is running first time in the Pune, but this horse is running first time for 2400 meter also. According to the pedigree, this horse can stay up to a mile and a quarter. Okay, no doubt. But the thing is, first run in Pune
odds should be above 6-1 and all to beat Botero. Okay. Coming to the fourth race of the day, the Fairhaven Trophy. This is the Class 1 trophy, Class 1 race of about 1200 meters. So in the fourth race, Endeavour has ran a term race also. Before that, ran in a Class 4 for 1400 meter, which was not his distance. And in Mumbai, he has won Class 1 race at 53.5. Okay, beating Gazino, then already beaten Enid Blitin, Cellini. This horse I like, but I'm not sure about this horse. Okay, in this horse again, in this race again, another horse is called Market King, which was second to Skyfall. Skyfall is also running over here. Skyfall is Skyfall last time won 12. Last time won in Class 2. Now running in Class 1. Okay, so the step up in class is very difficult to win. So according to handicap, Market King is better than Skyfall, because last time Market King was at 56.5, now 49.5, is 6 kilo down, 7 kilo down, and this horse is 1 kilo up. That means 8 and 16 points difference. Anyways, 2.5 length last time was verdict for Skyfall. So Market King is way better than Skyfall. So in this race, the race should be between Endeavour and Market King. I don't know who is hot favorite, but my first choice is Endeavour, and second choice is Market King. I don't think other horses will follow them. And if any big upset is there in this race, then Augustus Caesar can upset this race any time. No doubt, this horse has ran Bangalore term race. Only 3 lengths behind Naughty Dancer, but very difficult to beat Endeavour and Market King. And the fifth race is maiden race, which is BK Lagat Trophy for 1400 meters. It is open race. I don't think any horse to follow for betting. But over here, there are 2-3 horses which I like. Number 5 I like. Balenciaga was failed favorite and has a run advantage in Pune. And Golden Nil is a very good pedigree, half brother to Super Girl, but 1400 meter distance. Golden Nil I like, then Balenciaga I like, then Prinia also good pedigree horse. Which horse to follow? It's quite difficult race. That's why this race is quite open. So anyone can win this race. Coming to the sixth race of the day, this is the 1000 meter race, Class 4 Division 1. Over here I like Sovereign Master. No doubt last 2 run was very bad, because I think that time खाली रन दिया है ये घोड़े को, आर शेलर को बिठा के. नाउ पी शिंदे इज राइडिंग 5 किलो, claim he is taking, can strike any time. So actually most of the punters follow, बहुत सारे punters यही देखते हैं कि लास्ट टाइम घोड़ा सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, देन और विनर था, यही घोड़े को लोग फिर से फॉलो करते हैं और फिर से खेलते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम जब भी खेलते हैं कम ऑड्स में खेलते हैं और घोड़ा या तो विन होता है या तो प्लेस आउट होता है. बहुत ही कम ऑड्स पे बैटिंग होती है उनकी, तो पैसे बनते नहीं है पंटर्स के मोस्टली. ऐसे फॉलो करके लास्ट टाइम सेकंड था, थर्ड था या विनर था, अगेन फॉलो करते हैं. लास्ट टाइम सेकंड या थर्ड होता है या विनर होता है, वो घोड़े को पेनल्टी लग जाती है, रेटिंग में रेटिंग उनका इंक्रीज़ हो जाता है और पंटर वही घोड़े को फॉलो करते हैं. बट इफ विल सी द रिजल्ट्स दैट से मतलब वो घोड़ा वापस से नहीं आता है. ओके, सो रेसिंग में ऐसा नहीं है कि मतलब जो घोड़ा परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम, समझो लास्ट रेस उसका 10th भागा, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि लास्ट टाइम कौन से जॉकी ने चलाया है, वर्क जॉकी ने चलाया है कि अच्छे जॉकी ने चलाया है, या जो भी है. बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए.
ओके देखो अभी आर शेलर से पी शिंदे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पी शिंदे बहुत ही अच्छा जॉकी है, बट एक अप्रेंटिस जॉकी है। आर शेलर कभी प्लेस में भी नहीं आता, देखो आप उसका स्ट्राइक रेट देख लेना, बहुत ही लो स्ट्राइक रेट है उसका। देन सुफियान इज़ ऑल्सो गुड हॉर्स बट वेरी अनलकी हॉर्स आई थिंक। बहुत बार पिट चुका है, एक ही बार जीता था, वो भी 4.5 के भाव में ए प्रकाश भी जिताया था। अभी हरिदास गोरे, आई थिंक हरिदास गोरे ने एक घोड़ा जिताया है पुणे में, संजय कोलसे का घोड़ा था, याद नहीं उसका नाम। देन यहाँ पर मुझे साइफर पसंद है, नॉर्दर्न सिंगर पसंद है। नॉर्दर्न सिंगर लास्ट टाइम 10 लेंथ जीता था। लास्ट टाइम मैंने अपने जितने भी फॉलोअर्स से अपना व्हाट्सएप ग्रुप था, यहाँ पर नॉर्दर्न सिंगर गुड विन बताया था। देन कमिंग टू द 7th रेस ऑफ द डे, 1400 मीटर की रेस है, क्लास 5 की रेस है। यहाँ पर मुझे अनुष्का थोड़ा समझ में आ रहा है। 1400 मीटर कभी जीता नहीं, बट 2 बार प्लेस आ चुका है। लास्ट टाइम 4th हुआ था क्लास 4 में। अभी अमीन मर्चेंट से ए संदेश है, देखो ए संदेश बैठा है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी ए संदेश ने चलाया था इसको, बट 6th हुआ था, 2 लेन पीछे ही था विनर के। मे भी तभी इंटरफेरेंस हुआ था, अनलकी था उस दिन। फिर उसके बाद टीएस जोधा ने चला, संदेश ने वापस से ब्लेजिंग बे के पीछे चलाया था, तभी 3rd किया था। तो 2 बार संदेश ने इसको प्लेस लाया। अभी वापस से अमीन मर्चेंट से ये संदेश बैठा है, तो थोड़ा इसका हैंडीकैप अच्छा हो गया है अनुष्का का। अगेन यहाँ पर मुझे और एक घोड़ा पसंद है, वो है रॉयल कैसल, जो कि अनुष्का के पीछे भागा था। अनुष्का आई थिंक 1200 मीटर यहाँ पे जीत चुका है, फर्स्ट रेस ऑफ द डे इन पुणे। अमीन मर्चेंट बैठा था उस दिन। तो अभी 1200 मीटर से 1400 मीटर है और इसका वज़न भी बढ़ गया है। और यहाँ पर रॉयल कैसल पे फर्स्ट डे आकाश अग्रवाल बैठा था, 11th पोजीशन से 5th आया है, ये बहुत ही अच्छा भागा है। तो आई थिंक अभी आकाश अग्रवाल से दशरथ सिंह बैठा है, तो कुछ हैंडीकैप एडवांटेज है रॉयल कैसल के लिए। रॉयल कैसल इज़ बेटर देन अनुष्का। ओके, 8th रेस ऑफ द डे है, ये मिस्टिकल रोज, बहुत ही बेकार घोड़ा, मतलब बहुत बार फॉलो किया इसको और अनलकी है, विन ही नहीं होता। लास्ट टाइम प्लेस आया था, एमएस दौड़ा ने प्लेस लाया था इसको। ड्रैगन एस, देखो ड्रैगन एस वॉज फेवरेट टू मिरेकल एट 70 पैसा, रैन 1 लेन बिहाइंड एंड आफ्टर दैट दिस हॉर्स इज स्ट्रगलिंग इन क्लास 4। दिस ट्रेनर करता क्या है ऐसे घोड़े को, इतनी अच्छी पेडिग्री है, पता नहीं चलता। लास्ट टाइम भी स्लॉट, उसके पहले प्लांटेड, उसके पहले 1.5 के भाव में गुल किया है। बाप रे, बहुत बार पकड़ा है घोड़े को, कभी भी अपसेट कर सकता है। इट्स वेरी कॉस्टली टू फॉलो सच हॉर्सेस। ओके, द बेस्ट हॉर्स इन द फील्ड इज ड्रैगन एस, बट आई डोंट नो व्हाई सच हॉर्सेस नेवर विन्स। आइदर दे विल अपसेट एट 15-1, 10-1, 20-1, टू इट ऑल पंटर्स मनी। बुकी के रेस के लिए ऐसे सब घोड़े एंट्री होती है। टायरन ब्लैक लास्ट टाइम विनर था, बट वो मुंबई के रेस कोर्स पे था, पुणे में फर्स्ट रन है, नो डाउट। बहुत ही अच्छा क्लास भाग चुका है। सुपर नेचुरल, एम्परर रॉड्रिक, देन लास्ट टाइम जेरूसलेम को मारा है। जेरूसलेम आई थिंक लास्ट टाइम प्लेस आया था, बट पुणे में इसका फर्स्ट रन है, तो थोड़ा डाउट है। काफ़ी ट्रिकी रेस कार्ड है ये। फुल ऑफ ग्रेस लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा भागा था 1200 मीटर क्लास 4 में। ट्रेवर ने उसको लाया था, थोड़ा सा फंस गया था, इंटरफेरेंस हो गया था। अभी 200 मीटर ज़्यादा है और क्लास 4 भी है। एंड पी ट्रेवर से ए संदेश, तो इतना कुछ मतलब जॉकी में फ़र्क नहीं है। ए संदेश, पी ट्रेवर दोनों लेवल जॉकी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब ऑलरेडी ये 1400 मीटर जीत चुका है यहाँ पर, तो फुल ऑफ ग्रेस भी आता है रेकनिंग में। देन स्काई हॉक बहुत ही अच्छा घोड़ा है ये। लास्ट टाइम क्लास 4 में सेकंड था। अभी जॉकी एवरेज बेटा है टीएस जोधा, देखो एटलीस्ट 5-1 एंड 7-1 का भाव चाहिए इसको। इसके अंदर और एक घोड़ा हुआ है पावर ऑफ इन्फिनिटी, ये भी कभी भी अपसेट सॉरी पावर ऑफ इन्फिनिटी नहीं, यू कैन अवॉइड दिस। ओके सॉरी, इसके अंदर और एक घोड़ा वो है रीडिफाइंड। ओके, रीडिफाइंड ये एयर सपोर्टर अमेजिंग ग्रेस का बच्चा है। और
लास्ट टाइम ये विनर के काफ़ी क्लोज था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ तक ये मैजिल को बिठाया है। तो ये मैंने राउंड गलती से किया है पावर ऑफ इन्फिनिटी पे। एक्चुअली रीडिफाइंड मुझे पसंद है यहाँ पर, नंबर 10 रीडिफाइंड। ओके, तो रीडिफाइंड, देन स्काई हॉक, देन फुल ऑफ ग्रेस, ये 3 घोड़े आ रहे हैं रेसिंग में। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये घोड़ा बेटर है पूरे फील्ड में और ये डेज बेस्ड है। मैं आपको रेट्स और फेवरेट कौन है वही बता रहा हूँ। पूरे रेस कार्ड एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, पैसे कैसे बनते हैं, बहुत ही हार्ड है रेसिंग में पैसे बनाना। देखो फेवरेट